السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک اللہ والے، ایک سپیرے اور ایک بہت بڑے سانپ کا واقعہ سنانے والے ہیں۔ جب ایک بہت بڑا سانپ سپیرے کے سامنے زندہ ہو گیا تو سپیرے کے ساتھ کیا کیا، یہ عبرتناک واقعہ سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ اس لیے ہمارے ساتھ ویڈیو میں آخر تک جڑے رہیے گا۔ پیارے دوستو، بہت پرانے وقت کی بات ہے۔ کسی جگہ پر ایک سپیرا رہتا تھا جو جنگلوں میں جا کر سانپ پکڑتا، اس کے کسی حکیم کو جا کر بیچ دیتا تھا۔ یہ اس کا تماشا دیکھا کر اپنی روزی روٹی کا انتظام کیا کرتا۔ اس کے پاس ایک بین ہوتی تھی جسے وہ بجاتا اور اپنے شکار کی تلاش کیا کرتا تھا۔ اس کی بین بھی ایسی تھی کہ سانپ رینگتے ہوئے اس کے پاس آ جایا کرتے تھے۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا سب سے طاقتور سپیرا ہے۔ وہ دن رات سانپوں کی تلاش میں ویرانوں اور صحراؤں میں مارا مارا پھرتا رہتا۔ ایک مرتبہ وہ ایک جنگل میں گیا اور ابھی وہ اپنی بین کو بجانا ہی چاہتا تھا کہ اسے ایک اللہ والے نظر آئے جو اللہ کی عبادت میں مصروف تھے۔ وہ سپیرا اللہ کو نہیں مانتا تھا۔ اس کے بعد وہ سپیرا سانپوں کی تلاش چھوڑ کر اللہ والے کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ یہاں جنگل میں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس نے کہا، اے نوجوان، تم صحت مند ہو، کوئی کام کرو، تم کس کے آگے جھک رہے ہو؟ نوجوان نے بڑے تحمل سے کہا کہ تم اپنا کام کرو اور میری عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ سپیرے نے کہا کہ کام تو میں کر لوں گا، تم یہ سب چھوڑو اور میرے ساتھ سانپ پکڑو، اور یہ دیکھو میری جادوئی بین، اسے بجا کر میں کسی بھی نسل کے سانپ کو پکڑ سکتا ہوں۔ نوجوان نے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ تجھے اس کام میں لگایا ہوا ہے۔ بین میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ جنگل کے سانپوں کو نکال کر تیرے پاس لے آئے۔ بے شک اللہ ہی نے اس کام کو تمہارے لیے روزی کا سبب بنایا ہے۔ سپیرے نے کہا کہ مجھے کوئی روزی نہیں دیتا اور میں کسی کو اپنا رب نہیں مانتا، مجھے خود پر بھروسہ ہے۔ میں جب چاہوں کسی بھی انسان کو اپنے اشارے پر نچا سکتا ہوں۔ تم یہاں بیٹھو اور اپنی عبادت کرتے رہو، میں چلا اپنا کام کرنے۔ پیارے دوستو، اس کے بعد وہ سپیرا اپنے راستے پر نکل پڑا اور دوبارہ اس کی ملاقات اس اللہ والے سے نہیں ہوئی۔ دن یوں ہی گزرتے رہے۔ ایک مرتبہ سخت سردی کا موسم تھا۔ وہ سپیرا پہاڑوں میں سانپ تلاش کر رہا تھا۔ وہ بین بجا رہا تھا اور صرف چھوٹے موٹے سانپ ہی باہر آ رہے تھے، لیکن اسے کسی بہت بڑے اژدہا کی تلاش تھی جس کے ذریعے وہ ڈھیر سارا پیسہ کما سکے۔ سپیرے نے اپنی بین سے کہا، اے بین، مجھے یہ چھوٹے موٹے سانپ نہیں چاہیے۔ یہ سانپ پکڑنا تو میرے لیے بہت آسان ہے، انہیں تو میں چٹکی بجا کر اپنی تھیلے میں لا سکتا ہوں۔ تو اپنا جادو چلا اور مجھے کوئی بڑا سا ناگ پکڑ کر دکھا اور میں اس سے بہت سا پیسہ کمانا شروع کروں۔ اس کے بعد سپیرا اپنی بین کو بجاتا اور اس کی بین کی آواز جنگل کے تمام چرند پرند سن رہے تھے۔ ابھی وہ بین کو بجا ہی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے ایک بہت ہی بڑا کالا سانپ دکھائی دیا۔ اس نے غور کیا کہ وہ سانپ کی بین کے آگے بالکل بھی حرکت نہیں کر رہا تھا، یوں لگتا تھا کہ جیسے وہ مر چکا ہو۔ سپیرا آہستہ سے چلتا ہوا اس سانپ کے پاس گیا اور ڈرتے ڈرتے اسے کافی ضربیں لگائی، لیکن جب سانپ نے کوئی حرکت نہ کی تو اس کو یقین ہو گیا کہ یہ سانپ مر چکا ہے، کیونکہ پچھلے کئی دنوں سے پہاڑوں پر بہت سردی تھی اور برف باری ہو رہی تھی۔ سپیرے نے سوچا کہ شاید موسم کی سختی کی وجہ سے یہ سانپ اپنی خوراک حاصل نہیں کر سکا اور ٹھنڈی ہواؤں کو برداشت نہ کر پایا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی۔ سپیرے نے سوچا کہ اس مرے ہوئے سانپ کو اگر میں شہر لے جاؤں گا تو دیکھنے والوں کا کافی ہجوم ہوگا، اس طرح میں یہ تماشا کر کے خوب پیسہ کما لوں گا۔ دوستو، یہ بات تو سچ تھی کہ وہ سپیرا لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسہ کمانا چاہتا تھا۔ اب وہ سانپ اس کے لیے ایک پہاڑ کی مانند تھا جسے اٹھانا اس کے لیے حد تک مشکل ہو رہا تھا، لیکن اسے اس سانپ کو اپنے ساتھ ہی لے جانا تھا۔ یہی سوچتے ہوئے اس نے اپنا شاطر دماغ لڑایا اور درختوں کے چند پتے جمع کیے اور سوکھی ہوئی مضبوط شاخوں کی مدد سے سانپ کے بھاری بھرکم جسم کو ان پتوں پر ڈال دیا۔ جب اس نے درختوں کی چھال سے ایک رسی بنائی اور یہ جان لیا کہ اب وہ سانپ کو بڑی آسانی سے کھینچ سکتا ہے، تو اس نے شہر کا رخ کیا۔ اس سانپ کو اپنے دونوں ہاتھوں سے کھینچنا شروع کر دیا اور پھر وہ شہر پہنچ گیا۔ دوستو، یہ شہر کا مصروف ترین بازار تھا۔ بازار میں لوگوں کا بہت آنا جانا تھا۔
लोग उस सपेरे को उसके बीन की वजह से जानते भी थे। शहर में उस सपेरे के बारे में चर्चे होने लगे कि फला सपेरा किसी जंगल से एक बहुत ही नायाब नस्ल का सांप पकड़ कर लाया है। हर कोई अपना काम छोड़कर इस सांप को देखने के लिए निकल पड़ा। जब सपेरे ने देखा कि लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया, तो सपेरे ने सांप के ऊपर से चादर को हटा दिया ताकि लोगों को यही लगे कि ये सांप जिंदा है। सपेरा लोगों से कहता कि ये सांप तो किसी के हाथ आने वाला नहीं था, ये तो मैं ही था जिसने अपने शातिर दिमाग से इतने बड़े अजदहे को अपनी जादुई बीन के जरिए काबू में कर लिया। लोग उसकी बातों में आकर बेवकूफ तो बन ही रहे थे, लेकिन इसके साथ वो इस सपेरे को इनामात और पैसे भी दे रहे थे। सपेरे को चाहिए भी क्या था, वो लोगों से पैसे और इनामात लेने के साथ साथ उनकी तंजिया बातों पर खुश होता था, क्योंकि वो तब तक काफी अशरफिया जमा कर चुका था। दोस्तों, वो पैसे सपेरे उसके घर वालों के अखराजात के लिए काफी थे, लेकिन सपेरे का भी पेट नहीं भरा। वो और पैसे जमा करना चाहता था। चुनांचे पैसों की हवस में आकर सपेरे ने सोचा कि मैं यहीं पर रह लेता हूँ। अब घर जाने की बजाय वो अजदहे के साथ चौक पर ही सो गया। उसे अपने घर वालों का ख्याल नहीं था, वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा था। अगले दिन का सूरज तुलू हुआ तो कौन जानता था कि ये दिन सपेरे पहले पर कितना भारी गुजरेगा। वो तो अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाला, खुद पर गुरूर करने वाला एक घमंडी इंसान था और मुर्दा अजदहे से नाजायज माल लोगों से इकट्ठा कर रहा था। जब रात हुई तो वो सोने की तैयारी करने लगा। उसी रात जब नौजवान अल्लाह वाले का गुजर उस रास्ते से हुआ, तो सपेरे ने उसे देखकर कहा, अगर मुझे याद है और मैं गलत नहीं सोच रहा, तो तुम वही हो ना जो उस दिन जंगल में इबादत कर रहे थे, यानी नमाज पढ़ रहे थे। तो अल्लाह वाले ने जवाब दिया, हाँ मैं वही हूँ और मैंने भी तुम्हें पहचान लिया है। बताओ कैसे हो तुम? उसने कहा, मैं तो बड़ी ऐश में हूँ और मजे ले रहा हूँ। तुम बताओ यहाँ इस शहर में कैसे आना हुआ? नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, मैं जंगल से यहाँ सफर के लिए निकला था और मैं इधर इस शहर में तबलीग दीन कर रहा हूँ, और जो लोग मेरी बात को सुन रहे हैं वो अल्लाह ताला को मान कर कलमा भी पढ़ रहे हैं और बहुत से लोगों ने तोबा भी की है। सपेरा हंसने लगा और कहने लगा, अरे तुम कौन से रब की बात कर रहे हो और तुम यहाँ एक अल्लाह की ताकत लोगों को दिखा रहे हो? मुझे देखो, मेरी ताकत का अंदाजा लगाओ। मैं इतना बड़ा सांप जिसे 10 लोग मिलकर भी नहीं उठा सकते, मैं अकेला उसे जंगल से उठाकर यहाँ ले आया और अब ये मेरा पालतू बन गया है। जब बीन बजाता हूँ तो ये अपना तमाशा लोगों को दिखाता है। अभी ये सो रहा है तो मैंने सोचा कि मैं भी आराम कर लूं। नौजवान अल्लाह वाले ने कहा, अच्छा जरा मुझे भी तो दिखाओ कि ये सांप कैसे अपना तमाशा दिखाता है। सपेरे ने घबरा कर कहा कि नहीं, अभी ये सो रहा है। नौजवान ने कहा, तुम बीन तो बजाओ, ये उठ जाएगा। सपेरे ने कहा, नहीं, ये बड़ी मुश्किल से सोया है, अगर मैंने इसको उठा दिया तो ये नाराज हो सकता है, ये तो अब सुबह ही उठेगा। अल्लाह वाले ने कहा कि ठीक है, मैं सुबह का इंतजार कर लेता हूँ। अब सपेरा नौजवान की ये बात सुनकर परेशान हो गया और कहने लगा, अरे आप तो अल्लाह के दीन की तबलीग कर रहे थे ना, लोगों ने आपकी बात सुन भी ली है, तो अब आप जाइए, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। नौजवान ने कहा, नहीं, अब तो मैं ये तमाशा देखकर यहाँ से जाऊंगा, क्योंकि मैंने लोगों से भी काफी बातें सुनी हैं और तुम भी तो इसे अपने हाथों से उठाकर यहाँ तक लाए हो। अब इतनी मेहनत की है तो मैं भी सुबह तक इंतजार कर लेता हूँ। ये कहकर नौजवान एक दरख्त के नीचे बैठ गया। सपेरे ने सोचा कि मैं सुबह उसे कैसे सांप का तमाशा दिखाऊंगा, ये तो मर चुका है और मेरी बीन का असर भी इस पर नहीं होगा। सुबह हुई तो सपेरे ने देखा कि वो नौजवान दरख्त के नीचे बैठकर अल्लाह ताला की इबादत कर रहा है, तस्बीह कर रहा है। तो अल्लाह वाले ने सपेरे को देखकर कहा, ए मेरे भाई, अब तुम्हारी आंख अगर खुल ही गई है तो वो अपनी जादुई बीन बजा उस सांप का तमेशा दिखा दो। सपेरे ने सोचा कि अगर इसे मालूम हुआ कि सांप मरा हुआ है तो ये मेरा राज सबके सामने खोल देगा और मैंने अब तक जितने पैसे कमाए हैं वो सब मुझे वापस ले लिए जाएंगे। सपेरे ने ये सब सोचते हुए कहा, रुको, मैं भी तुम्हें दिखा देता हूँ। ये कहकर वो फिर से गहरी सोच में पड़ गया। अल्लाह वाले ने उससे कहा कि लगता है तुम लोगों के आने का इंतजार कर रहे हो। ये कहकर नौजवान अल्लाह वाले ने लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लोगों का रश देखकर सपेरा घबरा गया।
नौजवान ने कहा, अरे तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? तो तुम्हारे माथे पर इतने पसीने क्यों हैं? सपेरे ने कहा, नहीं, मैं परेशान नहीं हूँ, बस मेरा सांप जाग नहीं रहा है। नौजवान ने कहा, जाग नहीं रहा या फिर मरा हुआ है? लोग परेशान हो गए और कहने लगे, ये अब तक झूठ बोल रहा था हमसे। इस वक्त नौजवान सपेरा पास आया और कहने लगा, अब तक उस झूठ से तुमने कितना कमा लिया, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि अल्लाह की ताकत क्या है। मैंने तुझसे कहा कि एक अल्लाह की मान ले और उसके सामने झुक जा, लेकिन तूने नहीं माना, तेरे सर पर गुरूर सवार था। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि एक अल्लाह की ताकत क्या है। उसके बाद नौजवान अल्लाह वाले ने आसमान की तरफ देखा और कहा, ए अल्लाह, दिखा दे तू इस जालिम शख्स को अपनी ताकत, जो तुझे और तेरी ताकत को झुठला रहा है। ए मेरे रब, तू उसके इस सांप को जिंदा कर दे और उसे बता कि तू कितना ताकतवर है। उसके बाद नौजवान अल्लाह वाले ने सांप की तरफ देखा तो लोगों ने सांप में एक हलचल सी महसूस की। तमाम लोग उस सांप के पास आए और कहने लगे, ए सांप, तू इस मुनकिर शख्स को बता दे कि तेरा रब कौन है, तू किसको मानता है, तो तुझे किसने मार कर दोबारा जिंदा किया? इतना कहना था कि सांप बोल पड़ा, मेरा रब अल्लाह है, उसी ने मुझे मार कर दोबारा जिंदा किया ताकि मैं अस्कर और मुनकिर शख्स को एक अल्लाह की हकीकत बता सकूं। सपेरे ने कहा, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कहकर सपेरे ने लोगों की तरफ रुजू किया और कहने लगा, लोगों, मैंने कहा था कि मैं इस सांप का तमाशा तुम सबको अपनी जादुई बीन से दिखाऊंगा। अब देखना, मैं अपनी बीन से इसे अपने काबू में करता हूँ। लेकिन इससे पहले कि सपेरा बीन बजा था, सांप में थरथरी पैदा हुई और वो एक पहाड़ की तरफ निकल गया। वहां जाकर उस सांप ने अपना बड़ा सा मुंह खोल लिया। ये मंजर देखते ही लोगों में भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में से सपेरा भी शामिल था। वो सोचने लगा कि मैं कौन सी आफत को पहाड़ से उठा लाया, ये तो मुझे ही खाने के लिए तैयार हो गया है। अभी सपेरा भाग ही रहा था कि सांप ने सपेरे को निगल लिया। सपेरा सांप के पेट में मरा नहीं था। ये सांप एक दरख्त से लिपट गया और इस कदर जोर से बल खाया कि अंदर सपेरे की हड्डियां टूट गई। ये मंजर देखते हुए अल्लाह वाले नौजवान ने कहा, ए लोगो, देखो, जो अल्लाह की नाफरमानी करता है तो अल्लाह भी फिर ऐसे सरकशों के साथ यही करता है। बेशक अल्लाह कारसाज है, वही कुदरत रखने वाला है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबका हामी और नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।